Well, Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji, at the outset I owe to thank you for sparing your valuable time to be with us this morning and encourage us and also bestow us with your words of wisdom. Even though officially I have been designated as a guest of honor for this morning's program, but originally I am part of the host team, and therefore it's my proud privilege to welcome you on behalf of everybody over here, on my behalf, and also on behalf of the people of Jammu. Ladies and gentlemen, Honorable Vice President is a highly knowledgeable person, highly well-read, highly erudite, and highly literate. The one-liners spoken by him during his speeches and also during the conduct of the upper house, namely Rajya Sabha, in his capacity as chairman, are not only widely quoted but also are highly popular. And therefore, I think it's our proud privilege. There couldn't have been a better person than him to be the chief guest at the convocation. At the personal level also, I feel gratified because the fact that I have been bestowed with his kindness, love, affection, patronage for several years now, even when we were not part of the government. He was head of the political party and I was an ordinary Karyakarta. And I am thankful to him that even after we became a part of the government, he continued to bestow on me with the same guidance, affection, love and patronage. Honorable Lieutenant Governor, who's already said that I am his friend, I believe him and I also reciprocate that he is my friend. Professor Milind, Professor Sahai, I've seen them working, particularly Sahai, for a couple of years, and I know, I can stand witness to how painstakingly, diligently he's been responsible for building this institution inch by inch, brick by brick. I vividly recall when I had come here along with the then HRD Minister Prakash Javadekar ji, that was I think the beginning of IIM, that was I think shortly before Professor Sahai took over. And therefore it gives me a great amount of personal satisfaction to see this institution growing into such a glorious form. And I must say that much water has flown down the river Tavi since then, and much has changed in Jammu as well. Jammu today, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, IIM जम्मू बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबरे जी, IIM जम्मू निर्देशक आचार्य GS सहाय जी, IIM जम्मू के बोर्ड ऑफ गवर्नर के माननीय सदस्यगण, सम्मानित अतिथिगण, स्नातकों, अभिभावकगण और परिजनों, शिक्षकगण एवं स्टाफ के सदस्यगण, मीडिया के मित्रों, प्यारे स्नातक साथियों, आप सभी को नमस्कार। देश के 20 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में से सबसे नए IIM जम्मू के तीसरे और चौथे दीक्षांत समारोह में आपके साथ सम्मिलित होने पर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। हर नए संस्थान की तरह ही IIM जम्मू को भी पहले के IIM के अनुभव से सीखने का लाभ मिला है। साथ ही उसे अपने अलग पहचान बनाने का अवसर भी मिला है। मुझे खुशी है कि IIM जम्मू ने अपने लिए ऊंचे लक्ष्य किया है और बोर्ड ऑफ गवर्नर, निर्देशक और शिक्षक समुदाय उच्च स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करने, स्तरीय शोध और अनुसंधान के अवसर पर उपलब्ध कराने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। My dear
brothers and sisters, and my young graduates who are graduating today, Jammu Kashmir, like other parts of the country, has been an important center of education since ancient times. This is the land of Patanjali, who gave the gift of yoga to the world. This was the land where aesthetics got a new idiom in the works of Anandavardhana. This was the land where Laleswari and उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी, भारत सरकार के मंत्री, हमारे मित्र और यहीं के प्रतिनिधि सम्माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन डॉक्टर मिलिंद कांबले जी, डायरेक्टर IIM जम्मू प्रोफेसर BS सहाय जी, मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, हमारे एडवाइजर श्री राजीव राय भटनागर जी, श्री बशीर खान जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव श्री BV सुब्रमण्यम जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, बिजनेस मैनेजमेंट की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू कर रहे सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, IIM के सभी प्राध्यापकगण, सभी सम्माननीय अभिभावक, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बात शुरू करूं उसके पहले भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी का भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने समय निकाला और इस कन्वोकेशन में आप शामिल हुए। जितेंद्र सिंह जी का भी उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि में मैं एक बार स्वागत करता हूं। पेरेंट्स तथा टीचर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जीवन को अनेक विद्वानों तथा शास्त्रों ने अलग अलग तरीके से वर्णित किया है, डिफाइन किया है, और हजारों साल के उस विजडम का जो सूत्र मैं समझ पाया हूं वह है जीवन का मतलब सीखने की प्रक्रिया, जीवन का मतलब ज्ञान की प्यास, जीवन का मतलब कुछ न कुछ जानना बाकी रह गया है, कोई पूर्णांक नहीं है, जीवन भर सीखना है। आज जो विद्यार्थी नई राह पर चलने को तैयार हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब आप नौकरी शुरू करेंगे तो रोज नए अनुभव होंगे, अनेक जिज्ञासाएं मन में उत्पन्न होंगी। इसलिए शिक्षा की जो उत्सुकता, आतुरता क्लास में अब तक थी, वह आगे भी जीवन पथ पर बनी रहनी चाहिए। ज्ञान की खोज और ज्ञान का अर्जन, ये जो प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलनी चाहिए। मैं कांबले जी को और प्रोफेसर सहाय को तथा सभी प्राध्यापकगण और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी सदस्यों को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत कम समय में IIM जम्मू ने शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से प्रबंधकीय शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पैमाने पर अपनी एक अच्छी उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता पाई। विश्व के पहले मैनेजमेंट गुरु चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में जिस प्रकार बिजनेस एक्सपेंशन, मार्केट एक्सपेंशन, नए बिजनेस आइडिया, रेवेन्यू जनरेशन, क्रिएशन ऑफ वेल्थ पर सूत्र दिए थे, उस दौर के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए मैं मानता हूं कि वही गाइड बुक थी। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य कह लीजिए कि जो विजडम हमें ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मिल गई थी, वह 12वीं शताब्दी के बाद गायब हो गई, लुप्त हो गई। और इसलिए आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ इतना ही पता है
कि बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन की शुरुआत जोसेफ वाटन ने की और पहला इंस्टीट्यूशन 1881 में स्थापित किया गया। साथियों, वाटन के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिजनेस में स्किल तथा उसे एक पाठ्यक्रम के रूप में वाटन ने समझा और एक नई क्रांति का वहां से जन्म हुआ। फिर भी कई बार जब मैं अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करता हूं, कुछ किताबें पढ़ता हूं और उसके कोर्स के संबंध में कुछ जानकारी रखने का प्रयास करता हूं, तो कॉर्पोरेट एथिक्स हो, इवॉल्विंग बिजनेस मॉडल जैसी कुछ किताबें पढ़ने का अवसर मुझे मिला, तो अर्थशास्त्र की बातें आज के टर्बुलेंट और अनप्रेडिक्टेबल बाजार में कभी कभी ज्यादा प्रासंगिक लगती हैं। नौजवान मित्रों, जब आप लोगों ने एमबीए में एडमिशन की तैयारी की होगी, तभी अनुभव जरूर हुआ होगा कि बिजनेस एजुकेशन बिल्कुल एक अलग तरीके का कौशल प्रदान करता है, जिसमें सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि व्यवसाय से जुड़े प्राकृतिक नियमों का संगठित ज्ञान के साथ साथ प्रयोग भी होता है, जिसकी चर्चा अर्थशास्त्र में की गई है। बड़े प्रख्यात मैनेजमेंट गुरु टेड बिलिलीज भी सफल मैनेजर्स के लिए और उनके टीचर्स के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कहते हैं, जिससे उनकी प्रसिद्धि स्थापित हो सके और बदलते वक्त के साथ दोनों मिल करके चुनौतियों का सामना भी कर सकें। यही बात